Okay, big hello and welcome back. So here we are on here again. Last part of mathematics, है ना? हम लोग काफी मैथ्स किए जा रहे हैं. So I think now it's time to call off mathematics. Not alvida, but yes, definitely a small break from mathematics. What else can we do? लेकिन कहना कि देखो मैथ्स एक ऐसी चीज है और वो फिजिक्स का इतना इंटीग्रल पार्ट है कि उससे हमारा छुटकारा नहीं होगा, बल्कि होना भी नहीं चाहिए. Because as I said, maths is one tool which has actually helped us in the sense कि help physics grow in stature. So maths always and will forever remain the king of all subjects, and physics will be definitely one of the subjects which has used the tool of mathematics, isn't it? Chalo, so like we have done differentiation till now. We also did maxima minima in yesterday's session. So it's time to now start with integration today. So here we are. We're going to now discuss about integration. Now, what exactly is integration? We have already told you, in the sense that integration is basically summation of a very large number of small quantities. So very clearly, summation of very large number of small quantities. So that's integration. Summation of a very large number of very small quantities. Okay? That's what precisely integration is all about. Okay. Now, integration is also has another interpretation, that is, it is the area under a graph. So integration also has a physical interpretation, or you can say geometrical interpretation. And that is area under graph. So therefore, let's say this is a graph. It could be anything. And I want to find out the area under it. Okay, I want to find out the area under it. So let's say from here to here, I want to find out the area under it. So this is the area I'm interested in. Now, this area obviously you can't devise some kind of formula, because there is neither a triangle, nor a rectangle, nor a square, nor a circle, or for that matter, a no curve of it. So therefore, you don't have a formula for this area. There is a process, and that process is integration. Okay. Now, what do we do really? Because this is not a routine kind of area where you can just simply write length into breadth or half base altitude. You don't see that happening out there at least. So what we have to do is that we have to divide this area into very small strips. So what I do is that I divide this area into very small strips like this. And let's take one such strip just for an example. Let's say here, at a distance x and of a thickness, very small thickness dx. So the width of this rectangle is suppose dx. And this is approximately a rectangle. And this is y basically. That value is basically y. Y means the value of the function at x. That's y. So this small area can be written as y into dx. So the small area of this strip can be written as y into dx. Now, we have to find out the area not only of this small rectangle, but of all the rectangles that are there nearby. So this rectangle, this rectangle, this rectangle, this rectangle, this rectangle, of course this one, and then the others also. So therefore, what I have to do is that I have to find out the area like this. Integration of y dx. So this is what I'm supposed to do. So area will be equal to integration of y dx. Now integration, this is actually the summation. So generally we write summation as sigma, but here we are stretching this as khizdo, it becomes this. Now,
when you do a bigger course in maths, in the sense that when you will do a detailed course in maths, you will come to know several things, or rather several more things than what we're going to discuss out here. But then there's no harm in knowing some of the basic things. And that is, this is actually, interestingly, the result of the integration is interestingly opposite to that of differentiation. So the result is opposite to that of differentiation. Now, what do you mean by that? It means that let's say we have something, sin x, cos x, x to the power this, e to the power x, whatever, some function is, and we differentiate it and we get some answer. Now, that answer, if you integrate, you will get back the original function. Now, that is the process of reversal that I was talking about. Which means that let's say there is something, for example, let's say sin x. Now, sin x on differentiation, when I write capital D, it is the short form of differentiation. We get what? Cos x. That implies that if you do an integration of cos x, you're going to get sin x. Now, that's what the meaning is. Now, obviously, when you're integrating, there has to be a notation, just like differentiation. So, the notation of integration is integration cos x, as I said, y dx means cos x dx. Now, this is a general integration. There's a difference between a general integration and a particular integration. Now, you might say, what is particular integration? Particular integration is, suppose I ask you that you find out the area of this between x equal to 2 and 29. To give an example, 2 to 29. So that means you are integrating between a set two values. These are called as the limits. So this 2 will be called as the lower limit and 29 will be called as the upper limit. Got it? So that's what we are integrating between 2 to 29. Right? Then that will be called as a definite integration because you are giving some two particular values between which you are supposed to integrate. If there is no limits as such, then we call it as an indefinite integration. So this is basically an indefinite integration. But there is a catch. There is a catch. And that is, try to understand one thing is that, if I differentiate sin x, I will get cos x. So naturally, if I integrate cos x, I'm supposed to get sin x. But there's a catch. And that is, suppose instead of differentiating sin x, suppose I'm differentiating 5 plus sin x. There's a constant 5. Then, if I differentiate 5 plus sin x, I still will get cos x. And let's say I have hidden from you this fact that this is actually not sin x, but sin x plus 5. And then I ask you, please integrate this and give me my original function. So the problem is that you are having only cos x to look at. You didn't know whether it was 5 there or minus 2 there or 2 root 3 there or 5 pi. So any constant out there, you differentiate, it will vanish. So you will not be able to trace that particular constant because there is no way of going backward. So therefore, there is a problem with integration. And that is, if there was a constant added or subtracted, I'm going to always miss that out. So what is that way out? Then let's put a constant. So therefore, in case of indefinite integration, when I write integration cos x dx and the answer is supposed to be sin x, we don't write sin x. We write it as sin x plus c. Okay? Sin x plus c. Okay. So integration cos x is equal to sin x plus c. Now that's the resultant. Okay. What else? Sometimes, as I said, there is a limit also. That from 2 to 29 or whatever the limit might be, it might vary. ऐसे केस में क्या होता है? We call it as a definite integration. जैसे मान लो सपोज मैं कर देता हूं इसको as 0 to pi by 2. ठीक है? तो ये जो 0 और pi by 2 मैंने लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं limits. This will be called as the lower limit, and this will be called as the upper limit. So you might say,
What difference does it create? Well, there are differences. I'm going to integrate that only, and that's why I'm writing in details. Now, first of all, if there is a definite integration, there are two changes. Number one, the constant is gone. So no constant. The constant vanishes. Not only that, this time I will assign values to that answer that we have got, that is sin x. And there's a certain way of writing that, so that's a notation, so that's like writing method log. And that is right here 0, right here pi by 2. Okay. Now, this is the lower limit, this is the upper limit. What is the rule? Rule is that in the answer, whatever the answer is, put the upper limit first, then the lower limit, and subtract the 2. So I'm supposed to write this as sin pi by 2 minus sin 0. Now sin pi by 2 is, I know, 1 minus 0, and that is equal to 1. Okay. So therefore, integration of cos x dx 0 to pi by 2 will be equal to sin x with the limit 0 to pi by 2. Put the value of pi by 2 first, minus, put the value of 0 second, and then subtract. So you get 1 minus 0, that is equal to 1. So the final result is that integration of cos x dx limit 0 to pi by 2 is equal to 1. Now that's the final result. Of course, it's a very easy integration, and all the integration that you will get will not be always so easy as such. But then this is the basics, or these are the basic issues regarding integration. Okay? And I've already told you that the purpose of integration is what? To find out the area under a graph. Okay. So I have a question to ask now. That is, let me ask a simple question. Or rather, before that, let me also give you a list of the integration that we need to remember. As I said, integration is opposite to differentiation. So the list of differentiation that we've done will remain the same. So just reverse the process. For example, integration of tan x, differentiation of tan x was sec square x, isn't it? So therefore, integration of sec square x will be equal to tan x. And then, if there is no limit, that is indefinite, तो plus C डाल देना. और अगर limit है, तो अपना values वगैरह put करके answer निकाल लेना. So that's up to you. So वो जो rules हमने differentiation में सीखा था, वो तो intact रहेंगे, है ना? एक दो rules में थोड़े modification हो जाता है. Let's look at that. Number one, integration x to the power n dx. ठीक है ना? Integration x to the power n dx will be equal to x to the power n plus 1 by n plus 1. डिफरेंशिएशन में पावर घटता है और वो नंबर मल्टीप्लाई में जाता है. इंटीग्रेशन में वो पावर बढ़ता है और जो कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, सामने नहीं. तो ये दो डिफरेंसेस है और देख लो अच्छे से. सो दिस हाउ. बाकी वो जो रूल्स थे डिफरेंशिएशन वाले, वो एज इट इज स्टैंड करता है. लाइक आई डोंट थिंक आई नीड टू से देम एक्सक्लूसिवली. यू कैन वर्क ऑन देम yourself alone. Okay. So I've indicated what is exactly indefinite integration, definite integration, and so on. Now let's start using them. First question. This is y is equal to x square. Okay. And this is, let's say, up to x equal to. This point is basically 2, 3, 9. Okay, so this point is basically 3, 9. This is a small question, interesting one, interesting for everybody, and that is from Dhruv Goyal, and that is, कल भी class है क्या? Well, honestly speaking, Dhruv, I am also not aware. But if I remember the meeting that was held around 15 days back, तो उस समय तो ये प्लान था कि शुरू में Saturdays भी क्लास लगेंगे. Let's see. ठीक है ना? Let's see. Well, Navansh has a different as an answer also. Well, रुको. Question सुनो. Question is you have to find out this area. ठीक है? This is basically y is equal to x square, and you have to find out this area. Go ahead. सर दूसरा वाला या फिर ये? हाँ बेटे. सर वो ग्राफ के नीचे वाला या फिर
ऊपर वाला ले लो। शेडेड वाला, शेडेड वाला, शेडेड वाला। अच्छा I know, Dhruv, the reason why you're asking this, but there are other classes also, coaching classes. I understand, but management decision is a management decision. You can't really always work over it, है ना? ये चक्कर। ठीक है, I'm getting a rush of answers and that they're all 18. Actually देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो अप्रोचेस हो सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कि अगर ऐसे एरिया निकालना है तो दैट इज बेसिकली इंटीग्रेशन y dx. So this area is basically y dx. बट अगर ऐसे एरिया निकालना है ना, ये वाला, दिस इज बेसिकली इधर वाला, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dy. So now you have two ways, or rather two methods, two approaches. One is that this rectangle you can find out, this area you can find out by y dx and then subtract. That is one way. Other is that if you want to find the area of this part directly, then why not do integration x dy. तो मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन है, दोनों कर ले, क्या जा, है ना? चलो, तो पहला क्वेश्चन है तो इसलिए मैं दोनों कर देता हूं, एंड दैट इज, तो पहले x dy से करें, तो इंटीग्रेशन x बोलते क्या होगा, रूट अंडर y, यानी y टू द पावर हाफ इनटू dy. लिमिट्स क्या होगा? अब जो लिमिट्स होगा ये y का होगा, ध्यान रखना। जब ये वाला इंटीग्रेशन होता है तो लिमिट्स x वेरिएबल का होता है, और जब ये वाला इंटीग्रेशन होता है तो लिमिट्स फिर y वेरिएबल का होता है। अच्छा, y कहां से कहां तक है? 9, 0 से लेके 9 तक, है ना? 0 से लेके 9, so that is the shaded area. This is actually the area we have to find out. अगर तुम नीचे वाला एरिया निकालते हो तो वो इनडायरेक्ट मेथड होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फिर पूरे में से उसको माइनस करना, और अगर ये वाला निकाल रहे हो तो दैट्स द डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा, y टू द पावर हाफ, यानी +1, यानी इक्वल टू y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। हाफ को 1 ऐड किया और लिमिट्स हो गया 0 से लेके 9, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2/3 इंटू y टू द पावर 3/2, यानी 27 minus 0, so 9 2s are 18. So that's the direct answer, है ना? That's the direct answer. बट अगर तुम बोलोगे नहीं, मैं तो नीचे वाला निकाल के ऊपर पूरे में से माइनस करूंगा, तो ठीक है, देन डू y dx. अब y तो x स्क्वायर है, dx, x का लिमिट्स क्या होगा, 0 से 3, लिमिट्स अलग है, ये हो जाएगा x³ 3, 0 to 3, and that is equal to 9. अच्छा, टोटल एरिया कितना है? And this is 9, this is 3. So the total area is 27. तो 27 में से ये 9 माइनस करेंगे तो भी obviously 89. ठीक है ना? So that's the way to find out, either by using integration x dy, which is one tool with us, or else you find out the total area of the rectangle, और उसमें से integration y dx को माइनस करेंगे. That is also a method. ठीक है? So those are the two methods available. Now let's go ahead. Chalo. Our next question is that there are two figures that I'm giving you. One is y is equal to 4x. Okay. And the other is y is equal to x square. Find area in between the two graphs. Easy question, nothing very difficult really. Just to get a little bit more practice. Go ahead, find out.
the answers have started coming up. 32/3 is the latest answer. Yeah, that's what. So Arihant has also given 10.6, which is also essentially the same thing, 32/3. One Shing has also given the same answer, and that is 32/3. Now more answers are coming up. Akshat, Sanvi, Yash, everybody is giving the same answer, and that's because that's the correct answer. चलो ठीक है, good. यानी अभी हमें क्या करना है? Y is equal to x square, तो ये ग्राफ हो गया. और y is equal to 4x is this. In between बोलते हैं ये वाला. तो उसी से लिमिट डिसाइड होगा, ठीक है ना? So therefore I can set the thing like this. तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? x स्क्वायर और 4x बराबर है, तो x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 ये हो गया लिमिट. और बात है कि y वहां पे 16 होगा, x तो 4 है, इक्वेट कर दिया तो x इक्वल टू 4 एंड द y वैल्यू 16 आउट. ठीक है. So this is 4 and this is 16 and now that means the given area will be integration 4x dx 0 to 4 minus integration x square dx 0 to 4. So like this will be 4x dx. The integration means 4 into x square by 2. So 0 to 4 minus x square, that is x cube by 3. So this will be 16 by 2, 8, was a 32. Minus, this will be 64 by 3. That is equal to 32 by 3. And that's why everybody is getting the answer as 32 by 3. Now more people have given. Aryan, Dhruv, Shashwat, Yash. So that's a relatively easy question. And that's why you got the answer so easy. Now that is the essence of integration. And that is finding the area. Okay. But that does not mean that we have to restrict ourselves to finding out the area only. Therefore, now let's change gears and focus on how to use integration for certain cases. Okay. Now we'll start with an example. I will start with an example which I'm going to solve quickly myself. And then I will give you one question to solve based on that idea. You know, till class 10, there were some formulae which were given to you. And not all of them were properly explained as to where the formula came from. I'm sure, I am not sure very, but then I'm reasonably sure is that the volume of cone is 1 by 3 pi r square h. Now, was that proved? Was that proved really? I think the formula was given directly. 1 upon 3 pi r square h. This is what my gut feel is. बाकी तुम लोगों को पता होगा. पाई आर स्क्वायर जो एरिया ऑफ सर्कल है उसके तो खैर प्रूफ तुम लोगों को दिया गया. एक ज्योमेट्रिकल प्रूफ है कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके दोनों को रिवर्स करके ज्वाइन करके प्रूफ है. मैं उस पर भी ध्यान दूंगा अभी, उसको भी एक बार रिवाइज कराऊंगा. लेकिन इनके प्रूफ्स एक्चुअली अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन से आता है. मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ. वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4 by 3 pi r cube. Was that proved to you? I don't think so. तो तुमको डायरेक्टली बता दिया और तुमने भी एक्सेप्ट कर ली. जबकि मैथ्स में क्या बोला जाता है? डोंट एक्सेप्ट विदाउट लॉजिक, विदाउट रीजनिंग, विदाउट प्रूफ, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. बट 4 by 3 pi r cube प्रूफ तो नहीं किया गया, बट एक्सेप्ट तो कर लिए थे. क्यों? पार्ट ऑफ सिलेबस. क्या करें? क्वेश्चन में पूछा जाएगा. एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 pi r square. कहां से प्रूफ दिखा तुमको? ऐसे ही मान लिए थे, है ना? ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे तो नहीं है, बट कई सारे फॉर्मूले जो कि तुम लोगों को बता दिया गया.
without any logical proof. So it was just put to you, and you remember the formula, but you understood what the formula has a meaning for, and therefore you have used it in hundreds of questions and must have got all of them correct also, if barring maybe one or two. तो देखो फॉर्मूला के साथ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला में कोई कमी नहीं है, बट वो फॉर्मूला आया कहां से इज अ क्वेश्चन मार्क. नाउ दैट इज समथिंग दैट प्रॉब्ली यू कैन आंसर, है ना. चलो सो लेट्स सी सर. और इस क्वेश्चन में अगर हमें ऐसे फंक्शन देते जिसका ग्राफ नहीं पता तो नहीं, तो जिसके ग्राफ ही नहीं बनता हो ऐसे कैसे फंक्शन हो सकते. मतलब कोई ऐसा फंक्शन जिसका हमें ग्राफ नहीं पता हो, ऐसा हमें ना पता हो एक अलग चीज, कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा तो हो सकता है हमसे ग्राफ ना बनता. हाँ वही हमें ना ग्राफ तो बनता ही होगा ना, बिकॉज़ फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर मस्ट बी अ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ y. हाँ मतलब हमें ना पता हो ना, वो तो एक अलग बात है. हमें अगर ना पता हो तो हमें फिर ग्राफ ड्राइंग के टेक्निक पता होगा और उसके बेसिस पे ग्राफ बनाना पड़ेगा. और मैथ्स में ग्राफ ड्राइंग तो एक पूरा टॉपिक जो कि तुम लोग सीखोगे बहुत डिटेल में. तो देखो ग्राफ नहीं है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नंबर वन. क्योंकि अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो यानी हर x के वैल्यू की वजह से कुछ ना कुछ y का वैल्यू होगा. y इज द फंक्शन हमें, तो यानी x और y कोऑर्डिनेट बन गया पेयर. तो हर x के लिए हर एक y वैल्यू होगा, तो उन सबको ज्वाइन करके कुछ ना कुछ कर्व लाइन कुछ तो बनेगा. तो देखो ये जो बता रही है इसका पॉसिबिलिटी है, या तो फिर फंक्शन डिफाइंड ही ना हो, तो फिर ऐसे में ग्राफ भी नहीं बनेगा और फिर क्वेश्चन ही. कोई चीज जो डिफाइंड ही ना हो तो उसके एरिया भी कैसे डिफाइंड होगा. जिसका फंक्शन ही डिफाइंड ना हो उसके एरिया भी डिफाइंड नहीं होगा, है ना. वो चीज ऐसे नहीं होगा बेटे, डोंट वरी. ठीक है ना. वन मोर थिंग दैट हैज कम अप फ्रॉम आर्यन इज दैट can't we integrate one function with respect to other and then calculate the area. See देखो मैंने एरिया को अलग से a1 a2 निकाला था. what you can also do is that you can just write फंक्शन याद नहीं है 4x है, 4x minus x square ब्रैकेट में dx का इंटीग्रेशन वो भी चलेगा. वो एक ही चीज, उसको स्प्लिट करके लिखा था मैंने, और तुम बोलो कि मैं ज्वाइन करूंगा तो ज्वाइन करके भी वही लाइंस लिखने पड़ेंगे. एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना. इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. चलो एनीवे मैं एरिया ऑफ सर्कल को आज थोड़ा सा अलग अप्रोच से देखना चाहता हूं. तुम लोगों को जो एरिया ऑफ सर्कल का मेथड बताया गया है दैट वाज लाइक दिस, दैट दिस वाज द सर्कल एंड वी डिवाइड दिस सर्कल इनटू वेरी वेरी स्मॉल लाइक दिस. छोटे 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 बना दिए ऐसे बड़े सारे. फिर उनमें से एक ले लिया, ये उनमें से कोई सा भी एक ले लो, ये वाला ऐसे रख. फिर अगर बगल वाला जो है ना उसको पलट के फिर रख, यानी ऐसे रखो बगल वाले. उसका जो नेक्स्ट वाला है उसको एज इट इज फिर से ऐसे रख. उसका जो नेक्स्ट वाला है उसको पलट कर रख. फिर उसका नेक्स्ट वाले को ऐसे रख. फिर उसके नेक्स्ट वाले को पलट कर रख. फिर नेक्स्ट वाले को ऐसे रख. इस तरीके से क्या होगा देखना, एक रेक्टेंगल टाइप का बन जाए. अभी हैंड ऑन पिक्चर है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बट यू कैन गेट अ सेंस आउट. ये कितना है ना रेडियस है, तो ये तो रेडियस हो गया. सो दिस विल बिकम द रेडियस. और इसका सर्कमफरेंस कितना है ना 2 पाई r. पर सर्कमफरेंस के एक टुकड़ा यहाँ पे आ रहा है तो दूसरा टुकड़ा यहाँ पे आ रहा है, फिर तीसरा टुकड़ा यहाँ आ रहा है तो चौथा टुकड़ा यहाँ पे आ रहा है. तो सर्कमफरेंस तो ब्रेक हो गया ना, फिर आधे आधे में स्प्लिट हो गया. तो टोटल सर्कमफरेंस 2 पाई r होता है और ये पाई r होता है. So therefore the area is equal to pi r. So there is nothing surprising in it. And you have already done this method in your class either 8th or 9th or 10th, I don't know. But there is a way. मैं इस चीज को थोड़ा दूसरे तरीके से अप्रोच कर. अब जरा देखो ध्यान से मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ. If you are aware already, very good. नहीं एक बार अच्छे से देख. What I do is that I take the same circle and divide this circle into very small thin rings like this. Like this. One such ring, let me take as a sample. So let's say that is of radius smaller. By the way, इसका radius मैंने कैपिटल ले लिया. और उस रिंग को अच्छे से ड्रॉ करता हूं मैं, तो वो रिंग कैसे हो जाएगा.
ठीक है, ये स्मॉल आर हो गया और ये हो गया डी आर। ठीक है, देखो अच्छे से। यानी हमने रिंग लिया है जिसका रेडियस स्मॉल आर है और उसका थिकनेस एक बहुत पतले से लिया है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ पे कट करता हूं और इसको ऐसे फैला देता हूं। So like just stretch it like this. So what will I get? I will get a very thin rectangle. Now the radius is smaller here, not capital R, mind. Capital R is the last radius. Smaller is some radius in between. तो ये कितना हो जाएगा फिर 2 पाई स्मॉल आर, इसका लेंथ आ गया और इसका विड्थ यानी थिकनेस कितना होगा डी आर। So what would be the very small area of this DA will be 2 pi small r into dr, isn't it? क्यों? Length हो गया 2 pi small r और dr हो गया thickness, ये आ गया। So this is DA. If I want to find out the area, means I have to integrate all these rings. Integration D. Integration this. Now, will this be indefinite? Obviously no, it will be definite integration. क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्ट यहां से किया जहां पे स्मॉल आर इज 0 लाइक, फिर रिंग का साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, करते करते जो आखिरी रिंग आएगा वो कहां पे आएगा, वो कैपिटल आर पे आएगा। So therefore this integration is going to have a limits of 0 to capital R. So 0 to capital R, I think that's okay now. Really 2 pi small r dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, small r square by 2 0 to capital R. अब वो कैपिटल R square by 2 करो, 2 to cancel is equal to, so therefore the area of the circle will be equal to the area of the circle will be equal to pi r square. Now it is nothing very exceptionally great. I mean, it's just that it's a very routine method of finding out the area of a circle. This is one method. There could be additional methods also, and I'm not saying that this is the only method, but yes, this is one of the methods. Okay, but you know what? Integration is never complete unless you know some nuances and variety also. Okay, so what I do is that let me calculate this area different. Have a look. So that will give you an outlook that yes, I can interpret a lot of things in a variety of ways. So I'm doing the area in a different way. I hope this is okay. I mean, any doubts in this? Anybody? Chalo. As there is no reply, so like I assume that it's easy to understand. So it has been understood already. Let me introduce another way of doing it. Suppose I say this is a circle. I draw a y-axis and x-axis. Okay. Then what I do is that I take a small strip length. Okay. Let us say this strip is at a distance y and the thickness of this strip, suppose dy, and let's say this is r, the radius, so this will be under root of r square minus y square, तो ये भी उतना ही हो जाएगा। तो जो छोटा सा एरिया बनेगा dA, that will be twice of ठीक है, twice of under root of r square minus y square, इसका लेंथ हो गया into dy, इसका width। इससे क्या हो गया, इसका रेक्टेंगल का आगे एरिया। ऐसे बड़े सारे एरिया निकाल लो, ऐसे करके यूं करते करते फिर इधर से स्टार्ट करो ना। Now where do we start? है ना? If I want to find out all such areas, I will get half of the circle. So therefore, if I want to find out the area, of course we'll do by integration. But this twice was because of the fact कि ये length आधा था, तो उसको डबल करने के लिए। सर ये इंटीग्रेशन में जो आप ऐसे कर रहे हो कि y डिस्टेंस पे dy स्ट्रिप काट लो, सर ये दोबारा समझा दो थोड़ा सा, दोबारा मतलब एक और बार समझा दो इसे।
हाँ देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। देखो सर्कल है मेरे पास, तो पिछले बार हमने क्या किया था, पतले पतले रिंग्स ले लिए, एक के बाद रिंग लेते गए, सारे रिंग्स को ऐड किया तो आंसर आ गया 5 पे। अब मैं थोड़ा सा अलग अप्रोच से करूँ। कैसे? ना मेरे पास सर्कल है तो मैं सर्कल को ऊपर से स्लाइसेस कर, तो आई विल गेट स्मॉल स्ट्रिप्स विच आर लाइक रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ। तो उसके लेंथ क्या होगा ना, अगर ये y है ये r है ना, इसका लेंथ क्या होगा ना, ये तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये भी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी इसका लेंथ हो गया ट्वाइस ऑफ दिस, और इसका विड्थ क्या dy लिया मैंने। तो बेसिकली मैंने क्या किया, y डिस्टेंस पे जाके एक लाइन बना फिर मैं dy और ऊपर चला गया, फिर एक और लाइन बना, तो दिस हैज नाउ बिकम अ काइंड ऑफ अ स्ट्रिप। और उस स्ट्रिप का एरिया सर क्या? जैसे इसमें हमने सर डी वाई ऐसे लेते हैं हम जनरली कि एक डिस्टेंस पे हमने डी वाई विड्थ की स्ट्रिप काट ली, सर हम डी वाई तो उसकी लेंथ भी ले सकते हैं। नहीं dy तो लेंथ नहीं हुआ ना। I mean of course you might say कि नहीं length और breadth तो ऐसे कुछ नहीं, हम तो इंटरचेंज भी कर सकते हो, but let's call length as the longer one and breadth as the smaller one। तो breadth हमने dy। now you might say कि मैं बड़ा लूंगा तो क्या दिक्कत है, बड़े लेने में दिक्कत है, तो वो सब ये देखो, सपोज तुमने ये लिया y और तुम बोलोगे जो दूसरा लाइन है ना मैं थोड़ा ज्यादा ऊपर ले लूं, ये लो जी ये ले ली, अब तुम इसको dy नहीं लिख सकते। अब बोलो क्यों? क्योंकि ये तो देखो अजीब सा शेप हो गया, लेकिन अगर बहुत पतले बनाओगे ना तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन एज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में मैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ लगा सकता हूँ, इस वाले के लिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा, यानी पतले सेक्शन लेना पड़ेगा, मोटे सेक्शन नहीं चल, ये देख रहे हो मोटे सेक्शन नहीं चल पाए, तुमको बहुत पतले से ही सेक्शन लेने पड़ेंगे, इसलिए देखो मैंने dy लिया। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ विल बिकम द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। लेकिन अभी भी कुछ चीजें बचा है। लिमिट्स क्या होगा ना, पहला स्ट्रिप यहाँ पे लोगे तो वहां पे y का वैल्यू क्या है 0, और ऐसे करते 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 फाइनली यहाँ पे लोगे, यानी y का वैल्यू r हुआ। बट अभी रुको, कहानी में ट्विस्ट है क्या, कि ये जो मैंने लिमिट्स लिया 0 से लेके r तक, इससे सर्कल का ऊपर वाला हिस्सा तो हो गया, नीचे वाला हिस्सा तो अभी तक टच भी नहीं हुआ, डबल, इसलिए इसको फिर से डबल करेंगे। डोंट थिंक कि मैंने डबल कर लिया, नहीं ये डबल वो डबल नहीं है, ये डबल है, इसके लेंथ को डबल करके इसका प्रॉपर लेंथ निकालने, एक और डबल करना पड़ेगा, दैट इज टू इंक्लूड द लोअर पार्ट आल्सो, क्योंकि मुझे मालूम है सिमेट्री के चक्कर में कि ऊपर वाले हिस्से का एरिया और नीचे वाले हिस्से का एरिया बराबर। चलो सो वी गॉट, यानी अब मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया, मेरे पास एक इंटीग्रेशन आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू डी वाई और 0 टू आर, ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ गया। अब एक प्रॉब्लम है, इस इंटीग्रेशन का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इस इंटीग्रेशन का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, तो इस इंटीग्रेशन के लिए मैं काम करता हूं, है ना, इस इंटीग्रेशन के लिए मैं काम करता हूं, मैं लिखता हूं एज ठीक है, मैं लिख देता हूं एज y is equal to r sin theta, यानी आज मैं जसलीन has asked a question is that and that is क्या मैं इस केस में लिमिट्स को माइनस आर से प्लस आर ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता चले, मतलब क्योंकि y मैंने ऊपर लिया, तो अगर तुम यहां से लेना चाहते हो तो y माइनस आर होगा, यहाँ पे प्लस आर, तो चाहो तो माइनस आर से प्लस आर करो, तो फिर डबल मत करो, और अगर डबल करना चाहते हो तो 0 टू r कर लो, दैट केस डबल कर लो, चॉइस इज योर्स। So let's come back to this. Now we are going to use called as, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग बोलेंगे as method of substitution। देख लो अच्छे से, ठीक है, ठीक है, तो y is equal to मैं पुट कर रहा हूं r sin, तो therefore dy d थीटा क्या होगा r cos थीटा, यानी
dy को अगर मैं हटाऊंगा तो बनेगा r cos थीटा डी। देख लो अच्छे से भाई, तो हटा देते हैं फिर, ये बन जाएगा इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब y तो मैंने r साइन थीटा लिया, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर हाफ, तो आर कॉस थीटा। चलो ये हो गया आर कॉस थीटा। कौन सा पार्ट? ये पार्ट जो है आ गया आर कॉस। और dy क्या होगा? dy भी तो आर कॉस थीटा, यानी बेसिकली हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी। हो गया पहला चीज। ठीक है, अभी रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ। जब तुम वो सब्स्टिट्यूट करके नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इन दैट केस लिमिट्स भी नए के हिसाब से डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने लिमिट दिया था 0 टू r, ये तो y के हिसाब से दिया था, है ना, y के हिसाब से 0 टू r। देख लो, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे थीटा के हिसाब से देना है, यानी जक्सटापोज होना चाहिए, यानी काउंटर पार्ट होना चाहिए। काउंटर पार्ट का मतलब इसका लिमिट स्टार्ट होना है 0 से, तो यानी y 0। अब बताओ, जिस समय y 0 होगा उस समय अगर r साइन थीटा 0 होता है तो थीटा 0 होगा ना, यानी लिमिट स्टार्ट होगा 0 से। लिमिट से तो सेम ही है, सेम है बट हमेशा नहीं होगा। तो मैंने कैसे किया, देखो y का स्टार्टिंग वैल्यू 0 था, तो मैंने y को 0 पुट किया, तो r साइन थीटा 0 आया, तो साइन थीटा 0 आया, तो थीटा 0 आया। अब मैं थीटा का लिमिट यानी 0 से स्टार्ट। बट अभी रुको, ऐसे कॉपी नहीं होता, अभी थोड़ा सा रुको। जब y का वैल्यू r होगा, क्योंकि अपर लिमिट r है, तो जब y का वैल्यू r होगा तो r इज इक्वल टू r साइन थीटा, तो साइन थीटा फिर 1 हुआ। साइन थीटा अगर 1 होता है तो थीटा 90 डिग्री होगा। फिर मैंने पहले ही बोला कि हर चीज रेडियंस में होगा, यानी अब इसका लिमिट्स आ गया 0 टू पाई बाई। ठीक है, और आर स्क्वायर को बाहर निकाल दो, तो नहीं हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा और 0 टू पाई बाई। ठीक है, सही, मैं थोड़ा सब्स्टिट्यूशन फिर से स्टार्टिंग से समझा दो। अब बेटे सही, दोबारा से एक और बता देना। देखो मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कि ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मेट आ गया, ये मेरे किसी भी रूल के साथ फिट नहीं बैठ, ना पावर वाले रूल के साथ और ना ही वो फ्रैक्शनल वाले साथ, तो कोई किसी के साथ मेल नहीं खाता। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करना चाहता हूँ। कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो इट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो इस टाइप की जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है ना, जहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर वाई स्क्वायर रहता है, तो ऐसे में जनरली हम लोग y इज इक्वल टू आर साइन थीटा या आर कॉस थीटा ही पुट करते हैं। तो मैंने y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट किया, ये देखो पुट। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट y एज आर साइन थीटा, तो dy डी थीटा क्या होगा, आर कॉस थीटा। तो dy क्या हो जाएगा ना, कॉस डी थीटा को इधर ले गया तो आर कॉस थीटा। तो मैं से dy में आपको क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेशन को बदलूंगा तो सारे y बदलेगा, dy भी बदलेगा। dy होगा फिर नया वेरिएबल के टर्म्स में जो कि हमने थीटा इंट्रोड्यूस किया, इसलिए dy को हटा के मैं लिखूंगा r cos थीटा डी। ये देखो, ये जो dy है, सर वो तो समझ आ गया डी वाई, फिर उसके बाद फिर आपने ये कैसे लिख दिया नीचे वाला डी वाई? फिर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को हमने पुट करके निकाला r cos थीटा, तो वो भी आ गया और dy का भी आ गया, तो मिलके r स्क्वायर cos, r स्क्वायर बाहर निकाला cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आ जाओ लिमिट्स। जैसे लिमिट्स पहले किसकी जगह था, y का, और अब हमें लिमिट्स थीटा का चाहिए, तो जो y का वैल्यू है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो थीटा है वही लिमिट में पुट, रैंडम थोड़ी पुट हो जाएगा, जो मर्जी पुट कर लो। तो कैसे, लिमिट स्टार्ट हुआ था 0 से, y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 पुट करो, उस समय जो थीटा बनता है वो लिमिट हो जाएगा यहाँ, तो 0। फिर y की जगह पुट करो r, ये ठीक है ना, r। तो अगर y की जगह r पुट करो तो r इज इक्वल टू r sin थीटा, तो sin थीटा 1 हो गया। तो sin थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं लिखेंगे, रेडियंस में लिखेंगे, यानी पाई बाई 2, इसलिए लिमिट्स हो गया 0 टू पाई। अभी भी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं है, इस पे और स्टेप्स बचे हैं। इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा के लिए भी कोई रूल नहीं है, तो क्या करें, इसको हम लिखेंगे एज इक्वल टू 4r स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन
ये जो cos स्क्वायर थीटा है ना, इसको लिखो एज 2r स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। क्यों? कि 2 cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2 थीटा। हमने इसके ऊपर पहले भी एनालिसिस किया है, ट्रिगोनोमेट्री के दौरान मैंने ये सब रिलेशन पहले से दिया हुआ, तो मैं उसी में से एक यूज किया। ठीक है, चलो अब यहां तक पहुंच गए। हमें फिगर मिटा देता हूं, आपको फिगर की जरूरत नहीं है, तो आपको जगह कम पड़ रहा है शायद। एक स्टेप और लिख देता हूं, फिर आगे बढ़। इज इक्वल टू 2r स्क्वायर तो बाहर ही रखो, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन cos 2 थीटा डी थीटा 0 टू पाई बाई। अब ये दो इंटीग्रेशन आप, ठीक है, वो प्लस था बीच में तो स्प्लिट करके अलग अलग बना। अच्छा, यहाँ पे इंटीग्रेशन डी थीटा, तुम लोग इंटीग्रेशन डी थीटा तो है, साथ में तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है देखो, अभी थोड़ा समझ लो अच्छे से। अगर इंटीग्रेशन dx पूछा जाए तो हम इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर 0 dx, कर सकते हैं ना, क्योंकि इंटीग्रेशन dx क्या होता है 1 इंटू dx, और 1 को लिखो x टू द पावर 0 dx, यानी ये हो जाएगा x टू द पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1, यानी x प्लस। खैर x प्लस सी तो तब होगा जब इनडेफिनिट है, पर हमारा तो डेफिनिट है, तो सी तो होगा नहीं, बट हाँ कुछ लिमिट्स हो, इतना तो मुझे मालूम। चलो ठीक है, यानी इंटीग्रेशन dx अगर x होता है तो इंटीग्रेशन डी थीटा क्या होगा, थीटा, तो यानी ये हो गया 2r स्क्वायर इंटू थीटा विथ लिमिट्स 0 टू पाई बाई 2 प्लस। अब ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो मैं इसके लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूं अभी, इसको नोट कर लो। ये सब छोटी छोटी चीजें जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगा तो मैं फॉर्मूला अलग से देता रहूं, है ना। एंड दैट इज, राइट इट नाउ, इंटीग्रेशन, ये एक जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं, इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई a cos ax प्लस b, ठीक है ना, प्लस c अगर इंडेफिनिट है तो, और अगर डेफिनिट है तो लिमिट्स। सिमिलरली इसको लिख लो, इंटीग्रेशन cos ax प्लस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक है ना, सॉरी, प्लस साइन ax प्लस b प्लस c और 1 अपॉन t। तो ये दो रूल्स है। ये तो फिर भी सिंप्लीफाइड है, क्योंकि b तो है ही नहीं इस केस में, cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 cos 2 थीटा की जगह होगा sin 2 थीटा, b तो है नहीं, sin 2 थीटा, यानी sin 2 थीटा, लिमिट्स इसका भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इज इक्वल टू 2r स्क्वायर इंटू, अब थीटा का लिमिट 0 टू पाई बाई 2 है, इसमें पाई बाई 2 पुट करो, प्लस अब साइन 2 थीटा अगर पाई बाई 2 पुट कर दो, 2 इंटू पाई बाई 2 साइन पाई होता है, साइन पाई मतलब होता है साइन 180, वो 0 होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 माइनस, जब 0 पुट करो तो साइन 0 वो भी 0, यानी 0 माइनस 0 यानी 0, ये 0 ही आता है, खत्म। तो 2 2 कैंसिल, यानी इक्वल टू now you might say सर शाश्वत has asked a question that is quadratic form हो अगर फंक्शन में, देखो ऐसा ना कोई इंटीग्रेशन की कोई वन मेथड नहीं है। अब तुम पूछ रहे क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा तो क्या करें, कोई और कुछ पूछेंगे, so the answer is that there is no general rule as such, but yes there are certain rules which will be slowly studying, और इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें कई मेथड्स है जो कि धीरे धीरे सीखोगे, एंड ऑफ कोर्स इन डिटेल्स यू विल लर्न ओनली योर मैथ सिलेबस। हम तो उतना ही कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन और एक आध मेथड जो कि हमें जरूरत है। नाउ यू माइट कंप्लेन कि तो बहुत ज्यादा बड़ा मेथड है, पहले तो y के टर्म्स में, फिर सब्स्टिट्यूट किया, फिर सब्स्टिट्यूट करके कुछ रूल्स भी बताया, उस रूल्स को यहाँ पे लगाया, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हुआ ना। देखो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि यही वाला मेथड फॉलो कर, बट इस मेथड से एक फायदा हुआ कि हमने एक नया चीज सीखा, एंड दैट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
इस सब्स्टिट्यूशन कैसे करना होता है। और एक बात इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन सिर्फ फंक्शन का नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन जिस चीज का किया हमने उस वेरिएबल का यानी नए वेरिएबल के हिसाब से हमें लिमिट्स भी बदलना पड़ेगा। तो ये सारा चीजें हमने इनकॉर्पोरेट किया एक ही क्वेश्चन के अंदर। ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्गर मेथड, हाउ डज इट मैटर, लर्निंग इज लर्निंग, लॉन्गर हो या शॉर्टर हो। तो ये मेथड एग्जाम में थोड़ी करना, एग्जाम में तो हमें पता ही है पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए ड्राइव थोड़ी करें या प्रूव थोड़ी करें, बट ये पाई आर स्क्वायर आया कहां से। दैट फंडामेंटल क्वेश्चन आई ट्राई टू आंसर फर्स्ट बाय अ स्लाइटली इजियर मेथड, उसका 2-3 लाइन हो गया था। और इसमें काफी कुछ करना पड़ा, दैट्स बिकॉज़ देयर वाज in between a substitution that was required. सर हाँ बेटा अब बोलो। सर ये कैसे आया है इंटीग्रल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डी थीटा, ये कैसे लिखा आपने? पहले तो आपने आर डी वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा डी थीटा कर दिया था, उसके बाद ये वाला कैसे आया? हाँ देखो डी वाई तो हो गया आर कॉस थीटा डी थीटा, हाँ ये भी तो है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर टू द पावर हाफ। हाँ तो इसका क्या किया? हाँ तो यानी आर साइन थीटा लिखो तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर माइनस सॉरी आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर ओके हाफ। सर ठीक है। एक आर कॉस थीटा यहाँ से और एक dy से भी आर कॉस थीटा, तो मिला के मैंने इकट्ठा कंबाइन कर लिया था, मैंने स्टेप अलग से लिखा नहीं, तो दैट मच जंपिंग इज अलाउड, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी। और उसके बाद से तो हमने पूरा मेथड लगा दिया। पहले डबल एंगल फार्मूला में लिखा cos 2 थीटा के फॉर्म में, और cos 2 थीटा का जो जनरल इंटीग्रेशन है इसका रूल मैंने बता दिया, उसको यूज करके फाइनली आंसर आ गया y r square. I'm not saying it's a easy method, yeah, you know, very easy method. I'm only saying this is also a method, है ना, ये पॉइंट। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, नाउ यू डू इट फॉर ए कोन। कोन का वॉल्यूम प्रूव करो, कर लिया। सेंड भी करो, और कहाँ सेंड करना हो तो मालूम ही है। सो बाय इंटीग्रेशन you know find the volume of the cone. देख लो सर। You sent already? यस। ठीक, अभी देखता हूँ। उसके बाद सेंड करो, इंटीग्रेशन करके वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करके सेंड। Okay, some answers have already started coming up. अभी कोन का थोड़ा आसान है, कोन का जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने कोन का दिया। so that okay, Utkarsh has sent ठीक, सिंपल है, बट ओनली उत्कर्ष has sent। बाकी क्या कर रहे हैं बेटे? आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। ओनली उत्कर्ष has sent, नॉट गुड, जल्दी कट। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एज सच, कोन का तो फिर भी इजी है, बल्कि मैं तो इसके आगे भी बढ़ना चाह रहा हूँ, मैं देखता हूँ कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग। Okay, let me draw the cone first. This is the cone. ठीक है, let's take a height y from here.
this will be the radius small r. This is y. This is h. So I have cut a section here. तो ऐसे और ठीक इसके नीचे ऐसे, यानी ये y हो गया और ये जो थिकनेस है वो है सपोज dy. तो वो जो डिस्क है उसका रेडियस क्या है, तो वो सिमिलर ट्रायंगल से फाइंड आउट करेंगे. स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू y बाय h. तो स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू y बाय h. तो स्मॉल r इज बेसिकली इक्वल टू y कैपिटल R बाय h. ठीक है. तो इस डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा, तो dv. dv में स्मॉल वॉल्यूम ऑफ दिस वेरी थिन डिस्क क्या होगा ना, उसका एरिया इनटू उसका थिकनेस. एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर. So therefore this will be pi r square dy is equal to pi. Now r is how much, y capital R by h. So y capital R by h whole square into dy. अब लिमिट्स y का हो गया, तो y कहां से कहां तक, 0 से लेके कहां तक, h तक. ये हो गया 0 to h. So that is equal to pi r square by h square, है ना. r square h square बाहर आ गया और y स्क्वायर dy, यानी y स्क्वायर dy 0 to h. तो y स्क्वायर का क्या होगा, y क्यूब बाई 3, यानी पाई r स्क्वायर h बाई h स्क्वायर इनटू y क्यूब बाई 3 0 to h. So that will be what, h क्यूब बाई 3. तो h क्यूब और h स्क्वायर कैंसिल होके एक h रहेगा, 3 रहेगा, यानी 1 बाई 3 पाई. Now that's the surface area, sorry, that's the volume of the cone. ठीक है, that's the volume of the cone. It's a relatively easy one, not a very difficult one really. तो इस तरीके से जो है हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे. कैसे किया हमने, कोन है, इसको स्लाइसेस करते गए तो बहुत पतले पतले डिस्क से निकल आएंगे. And I think that would be the way to go ahead. ठीक है, यानी हो गया इक्वल टू 1/3 pi r square h. ठीक है. Now that was about volume of cone. We just have sufficient time to finally also prove. अब ये prove करो अच्छे से, and that is volume of a sphere. So integrate and find volume of sphere. Go ahead. है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पता है 4/3 पाई r क्यूब. लेकिन हमने क्लास 9th या 10th जब भी ये फॉर्मूला सीखा या 8th में जब भी सीखा था तो बुक में कह दिया और हमने मान लिए. हमने उस समय ये इन्वेस्टिगेट करने के पोजीशन में नहीं थे, हम लोग नहीं थे कि ये आया कहां से, है ना. तो वी एक्सेप्टेड इट. चलो ठीक है. At that time it was okay to accept, but now right now we will not accept. We will find out a way of deriving the formula or getting the formula and then only accept. So that's what I'm wanting you to do. Integrate and find out the volume of a sphere. Go ahead. या क्लास 8, 9, 10 जब भी पढ़े होंगे मान गए थे. Did you really get to prove it? We really never bothered to prove it actually. आज मैं चाहता हूं कि प्रूव कर ही दो, है ना. चलो, as I've given you sufficient time to think, let me initiate the process myself. And well, this is the sphere. ठीक है. I go a distance y and I cut like this. सर हाँ बेटा, देख लो. हाँ, अभी ना थोड़ा टाइम कम है तो इसलिए मैं भी फटाफट खुद सॉल्व करता हूँ. ये y है और इसका थिकनेस सपोज है dy. तो ये हो गया r,
ये y है, तो ऑब्वियसली फिर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r square minus y square. ठीक है, तो how do I really find out the volume of the sphere? I can find out the volume of the disk, and likewise I will go on cutting slices like this, and I will get many disks and add the volume of the disk, which is integration dv. तो v हो जाएगा इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dv क्या है ना, इस डिस्क का एरिया, इसका रेडियस क्या है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी पाई इनटू r square minus y square under root का whole square. This is the area of the disk into thickness dy. अब लिमिट्स जो है तुम माइनस आर से लेके प्लस आर भी पुट कर सकते हो, और नहीं तो 0 to r लिख के डबल कर लो. चलो डबल कर लो, 0 to r इज इक्वल टू, ये रूट तो हट गया, पाई बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन 0 to r square minus y square dy इज इक्वल टू पाई इंटू, अब इंटीग्रेशन अलग कर लो, r square वाला अलग कर लो, dy 0 to r माइनस y square dy 0 to r, देखो इज इक्वल टू पाई इंटू r square. अब dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y, so let's put y here with limit 0 to r माइनस y square का लिमिट्स हो जाएगा y क्यूब बाई 3, और हाँ डबल भी था, मैं डबल लिखना भूल गया, that's the double part, minus y क्यूब बाई 3 that is also 0 to r. ठीक है, तो अब यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए मैं इधर आ जाता हूँ, इज इक्वल टू 2 पाई इंटू y का 0 to r होगा r इंटू r स्क्वायर इज r क्यूब माइनस y क्यूब बाई 3 है ना, यानी r क्यूब बाई 3, ये जगह 2r क्यूब बाई 3, यानी 2 पाई इंटू 2r क्यूब बाई 3 that is equal to that is equal to 4 upon 3. ठीक है ना, 4 upon 3 pi r. This is what the formula for the volume of a sphere is. So I'm just removing myself a little bit. I'll just have a quick follow through of what I've done, isn't it? What I've done is that I've integrated dv, where dv is this area of the disk, this is the area of the disk, into thickness. फिर उसको प्रोसेस लगा के, ये स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर है इसलिए वो सिंप्लीफाई हो गया, पाई और 2 बाहर निकाल दिया, एंड सब्सिक्वेंटली इंटीग्रेशन करके आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस रियली, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. ठीक है ना, वैसे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के लिए एक और है ना, एक और भी तरीका है. ध्रुव हैज एटलीस्ट रिक्वेस्टेड 3 टाइम्स कि कुछ बेसिक मैथ्स के शीट्स दे देना. डोंट वरी, यू विल गेट इट. आई मीन मैथ्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं जरूर दूंगा वीकेंड पे करने के लिए. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. We have just sufficient, we had rather just sufficient time for completing the methods of integration that we want to discuss. I think इतना ही बहुत है. इसके बाद हम लोग मैथ्स छोड़ के अब प्रॉपर फिजिक्स के डोमेन में एंटर करेंगे, and that would be the next class. So I think the next class will be probably tomorrow. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. Have a good day and enjoy the day. In fact, bye bye.